Recording in progress. In this, yesterday by mistake I told you this will be, अच्छा ये 8, मैंने शायद 4 बता दिया था, but it will be 8 in fact, half of this much will be 8. Why? Because this is 6, this is 10. Pythagoras theorem said this will come 8. This is also 8. So total length will be 16 in third part. और ये कितना था? 10 plus 10. In first part total length will be 20 centimeter. ऑलराइट, सेकंड पार्ट में क्या कर रहा था? सेकंड पार्ट में क्या हुआ था? इसको टर्न किया था 45 नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में. तो लूप विल नॉट, वायर को टर्न किया नॉर्थ ईस्ट इधर. तो फील्ड जो है, फील्ड के साथ एंगल उसका 45 है ना. तो थीटा विल बी 45. नाउ फार्मूला क्या लगेगा? ILB sin 45. तो ये L डैश भी हो जाएगा because more length will be there now in the field. Field is in the cylindrical region, है ना. ऐसा field, ऐसा it is like this. If you see from front, it is coming out, or lines are entering into it. इस तरह से. And if you are keeping the wire like this, तो angle 90 है. But if you are inclining, उसको ऐसे कर रहे हैं. This length goes up. देखो यहाँ पे ऐसा होगा. F will be, just a minute, L dash B sin theta. L dash बढ़ जाएगा अगर तुम ऐसे ऐसे ला रहे ना. If you are just, L dash will go up, but L dash sin theta will be equal to L. L dash ये और ये, it will be L into B. L is nothing but a 10 plus 10, 20. यहाँ से देखो ये 10 होगा, this is also 10. It will remain 20. इसीलिए they have given you the answer 2.9. vertically downward direction you can see vertically downward आएगा. इसमें भी same जो A का आ रहा है, B का भी same आ रहा है. True for any angle between the current direction and B, since L sin theta remains fixed, that is equal to 20 centimeter. तो ये थोड़ा सा विजुलाइज करने वाला पार्ट है. इफ यू आर टर्निंग इट, वायर को सिलेंड्रिकल पार्ट में टर्न करते जा रहे, उसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, बट उसका साइन थीटा L डैश साइन थीटा remaining equal to 20 सेंटीमीटर. अगर सपोज तुमने ऐसे कर दिया, ऑलमोस्ट ईस्ट की तरफ लेके आए वायर को से 1 डिग्री, तो लेंथ विल बी फर्दर इंक्रीजिंग वेरी लार्ज ऐसे. और उसका ये जो कंपोनेंट है इस तरफ, ये वाला कंपोनेंट रहेगा, इट विल बी 20, इट विल बी इक्वल टू रेडियस. और इधर वाला भी, तो दैट विल रिमेन L sin theta will always remain 20. इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का सेम है. थर्ड में थोड़ा सा इसको नीचे स्लाइड किया. दिस, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर. थर्ड पार्ट उसको नीचे ले आया. दिस मच पार्ट इज इन द फील्ड नाउ, 8 सेंटीमीटर प्लस 8, 16 सेंटीमीटर in the field. So ILB sign will be 90 again if you are just sliding, not turning it at all, keeping it in the north-south direction like this. So sin theta will be 91. ठीक है. तो ये पार्ट थोड़ा सा देख लो इसको. It can be useful, very useful for competitive examination, particularly the second part. ठीक है. So this was the question number 23. And now we are going to see remaining topics of this chapter. Very few topics are remaining now. देखो, magnetic dipole moment of revolving electron. Suppose if I ask you, okay, question के form में, ये theory part derivation actually. Electron is revolving around the nucleus. उसका dipole moment बनेगा. Yes, because moving charge, moving electron is equivalent to current. Current है तो current loop बन जाएगा. Current loop बनने क्या, तो dipole हो गया. तो उसका डायपोल मोमेंट भी होना चाहिए. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? करंट कैसे निकालेंगे? चार्ज क्या होता है? E डिवाइड बाई टाइम, 1 सर्कल के लिए. तो 1 सर्कल का टाइम पीरियड कितना रहेगा? 2 पाई r बाई स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो करंट मिल गया. एरिया तो वेरी क्लियर, पाई r स्क्वायर हो जाएगा. दैट्स ऑल मल्टीप्लाइंग एंड गेटिंग द डायपोल मोमेंट. वेरी सिंपल डेरिवेशन, बट यू शुड रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स.
So let's see now. Let me is the mass of electron and E is the charge of electron. V is the linear speed of electron around the nucleus. Omega is the angular speed and R is the orbital radius. So whatever point I told you, usko just already I have written, just I can save the time and show you. Dekho. Time period is nothing but a circumference upon speed. Circumference upon speed, circumference is 2 pi r, speed is v. तो टाइम पीरियड मिल गया और वन लूप के लिए करंट निकाल लेंगे आई इक्वल टू क्यू बाई टी. तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है. तो वन लूप के लिए कैपिटल टी सिंबल एंड चार्ज इज इंडिकेटेड बाय ई फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ. तो करंट विल बी टी की वैल्यू पुट कर दो ये यहाँ पर. तो 2 पाई आर वी ऊपर आ जाएगा. तो नाउ वी हैव गॉट द करंट. जस्ट क्या बचा है, एरिया से मल्टीप्लाई करना है. Since we are talking about the single turn, so n will be 1. That's all. So dipole moment of electron is denoted by mu l, orbital है ना, angular है ना. mu l symbol दिया गया है, तो that will follow. Symbol जो NCERT book के मिलता है, we are trying to keep it as them as it is. mu l, तो mu l है ना. तो बस अभी एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो we'll get the momentum, I mean angular, we'll get the dipole moment, in fact not angular. देखो, can you see it? थोड़ा सा और बड़ा कर दो. Can you see it now? देखो, angular dipole moment current निकाल लिया हम लोगों ने ऊपर. Getting this? तो current multiplied by area, since we are talking about single turn, तो n will be 1. तो ये आ गया, इसमें पाई कैंसिल हो गया, एक आर भी कैंसिल हो गया, ऊपर EVR upon 2. So that's what is the required derivation given in your textbook. Maybe ask for 2 marks or 3 marks. Direction भी लिखनी पड़ेगी. But एक इसको हम इसमें भी चेंज कर सकते. Can we do it in omega? ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हैं. Yes, V is equal to omega r होता है. Since V is equal to omega r, therefore dipole moment of electron will be half EVR. तो V की जगह हमने ओमेगा पुट कर दिया. E omega r square हो जाएगा. This can also be written, but mostly it is written half EVR. Are you getting this? Bolo. This is easy derivation comparatively. Half EVR is the dipole moment of electron revolving around the nucleus. Or simply revolving. It may not be revolving around the nucleus. It is simply revolving due to some centripetal force, centripetal acceleration. So EVR will be there. E is the charge, V is the linear speed of electron, R is its radius of the orbit, or radius of the circular path. Okay. So since V is equal to omega, तो V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ओमेगा एक आ जाएगा, R will become R square, 2 बार आना. चलिए, are you there? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो, ये important है. डायरेक्शन बताएंगे इसकी. Perpendicular to the plane of the circle, up or down, outward or inward. बोलिए, सोच समझ के आंसर दीजिए इसका. In this particular diagram, किधर टर्न हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है. What will be the direction of its dipole moment? Sir, upward. Sir, upward. Let us see क्या है. Upward जो है, okay, let me get other answer. Current किधर होगा? Current in which direction? Electron is going anti-clockwise. In which direction current will go? Opposite to flow of electron, you know. Opposite to the motion of electron. Current किधर होगा? ये देखो पहले. Then जिधर current होता है उधर fingers रखो. Thumb will indicate the direction of field also. Thumb will indicate the direction of dipole moment. Same ही रहती ना. First identify the direction of current, then you can do it. Note कर लो और फिर बताओ उसको.
करंट अपोजिट जाएगा कि नहीं, है ना? If electron is going left, current will be going right, opposite to the flow of electrons, है ना? तो करंट विल बी क्लॉकवाइज, है ना? तो करंट को ऐसे दिखाएंगे हम लोग। ऑलराइट, तो फिंगर्स को रखो along the circumference, thumb will be going inward. तो in this particular diagram inward, अच्छा इन्होंने दिखाया भी है, देखो यहाँ पे क्रॉस दिखाया कि नहीं, they have indicated here, यहाँ भी म्यूएल, म्यूएल इज द डाइपोल मोमेंट, है ना? इसका इंडिकेशन म्यूएल, क्लियर? तो हाफ EVR and direction will be given by right hand rule. Current will be indicated by the right hand fingers, thumb will be indicated by field and dipole moment both. ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, ओनली थिंग यू नीड द वेलोसिटी, यू नीड द रेडियस। ये नो, हाइड्रोजन एटम के लिए तो ये नोन होती है, ना? डू यू नो व्हाट इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट ऑर्बिट? If we talk about the first orbit, R is also known, V is also known. So you can very easily find out electron, hydrogen atom की electron का dipole moment कितना होता है। Unit क्या होगी इसकी? What will be unit of dipole moment of electron? Again, ampere meter square. Unit will not change if all similar physical quantities will have same unit. Ampere meter square. Are you there? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो डायरेक्शन समझ में आ गई? राइट हैंड रूल से देंगे। इन Yes, दिस sir. डायग्राम Yes, it sir. will be downward because current is opposite to movement of electron. नोट कर लो इसको, बोलिए। डन, आगे देखें। ओके, सम मोर रिलेटेड पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक के और देखते क्या क्या पॉइंट है। डू यू रिमेम्बर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, समबडी कैन टेल मी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एंगुलर मोमेंटम का सिंबल एल होता है, बट एनसीईआरटी बुक में उन्होंने दे टेकन स्मॉल एल। क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच? MVR? यस सर, नो? एंगुलर मोमेंटम इज I ओमेगा। I कितना है? फाइंड मास है mr स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा इज V by R, ओमेगा को V by R लिख देंगे, एक R कैंसिल हो जाएगा। MVR इलेक्ट्रॉन के लिए MVR। what is the Bohr's second postulate? Can anybody tell me second postulate given by the Bohr's about the atomic model, about the stability of atom and electrons? बोलो क्या है? Bohr's second postulate is angular momentum MVR of electron. MVR of electron is quantized. कितना quantized है? It is in quantums. This much or 2 times of that much, 3 times of that much. How much? Minimum h upon 2 pi first orbit में, second orbit में 2, third orbit में 3 times, fourth orbit में 4 times, nth orbit में n times. इतना होता है angular momentum of electron. MVR is nh upon 2 pi. ठीक है, Bohr's second postulate. We are going to use it today. Bohr's second postulate of atomic model. Angular momentum is quantized, which is h upon 2 pi. Constant ही है ये. H is the Planck constant, 2 pi, 6.28. तो constant रहता है. 1 time of this or 2 time of this, 3 time. वही orbit stable होती है. Other orbit में electron will not sustain. It will come down to the lower stable orbit if you release in between somewhere after radiating some energy. Why they are quantized? उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। Not now. मतलब ये ऑर्बिट पॉसिबल है, he himself didn't know,
कि why these orbits are possible. फिर डी ब्रॉगली ने उसको जस्टिफाई किया why these orbits are possible by nodes and anti nodes, stationary waves से जस्टिफाई किया उसको. they are not at all visible, कुछ दिखता नहीं है इलेक्ट्रॉन को, nobody has seen, है ना, but he could Bose could give the postulate and de Broglie could prove it, उसको प्रूव करके दिखाया उसने अपनी फार्मूले से, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के फार्मूले से. ऑल दे आर वेरी जीनियस, है ना. चलो आगे देखें. तो इसी में कंटिन्यूएशन है, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी बुक में. एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, बट जनरली दे डोंट आस्क द फर्दर पॉइंट्स, बट यू शुड नो. देखो, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जायरेशन सुना, जायरेशन मींस रोटेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन होता है ना. तो जायरेशन वर्ड इज रिलेटेड टू रोटेशन और रिवोल्यूशन. तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रेशियो ऑफ डायपोल मोमेंट जो भी हमने पढ़ा टू द एंगुलर मोमेंटम, जो अभी मैंने बताया आपको, डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का रेशियो होता है. तो एंगुलर मोमेंटम हाफ ईवी, आई मीन एमवीआर है, और ये हाफ ईवीआर है, दोनों को डिवाइड कर देंगे. तो लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. जायरोमैग्नेटिक को शॉर्ट में जीआर लिख दूं मैं, ऐसा कोई सिंबल नहीं यूज करते, तो शॉर्ट में मैंने नीचे लिखा हुआ है जायरोमैग्नेटिक रेशियो को जीआर. ठीक, यहाँ भी लिख देता हूँ सो दैट यू शुड नॉट. तो इट इज द रेशियो ऑफ dipole moment and angular momentum of revolving electron. तो GR is dipole moment, angular momentum का symbol L है, half EVR upon I omega. I omega को, okay, इसको just let me just reduce it, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं करता. You know that EVR MVR होता है, ये तो half EVR, this is MVR, simple. ठीक है, simple. बट तो क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस मींस क्या, देखो माइनस का मीनिंग यहाँ पे समझो. कैन somebody tell me what is the direction of angular momentum of electron? ये इलेक्ट्रॉन है, देखो it is turning like this. तो डायपोल मोमेंट किधर होगा, आई मीन एंगुलर मोमेंटम किधर होगा, डायपोल मोमेंट तो इनवर्ड है. व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन? एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या करते हैं, फिंगर्स रखो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ, इधर फिंगर्स रखो, थंब विल बी अप. फिंगर्स अगर हम ऐसे रखेंगे, थंब विल बी अप, जिधर टर्न होती है बॉडी उधर ही फिंगर्स रखते हैं, और थंब विल इंडिकेट द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. जिधर ओमेगा होता है, देखो, डू यू रिमेम्बर, एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, जिधर ओमेगा होगा उधर ही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी. ओमेगा विल बी एंटी क्लॉकवाइज के लिए ओमेगा अप आता है, फिंगर्स इधर रखेंगे, थंब अप, और इधर अगर क्लॉकवाइज टर्न करेगा तो डाउन आएगा. तो अपोजिट आ रहा है, देखो एंगुलर मोमेंटम इज डाउनवर्ड और सॉरी, हाँ, आई मीन डायपोल मोमेंट इज डाउनवर्ड, जस्ट दोनों सिमिलर लुकिंग वर्ड्स लिखे. डायपोल मोमेंट इज डाउनवर्ड, एंगुलर मोमेंटम इज अपवर्ड, दोनों अपोजिट है. देयरफॉर माइनस, सिंस बोथ आर अपोजिट, यहाँ पे माइनस का सिग्निफिकेंस है, सिंस बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज गोइंग, v इज गोइंग, r इज गोइंग. तो बचा क्या अपने पास, ये बचा, देखो दिस इज कांस्टेंट, इनफैक्ट दिस इज कांस्टेंट, माइनस मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा इसका. यू कैन सी दैट चार्ज पुट कर दो, कितना होता है चार्ज, 1.6 into 10 to the power minus 19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें पता होता है कितना होता है, 9.1 into 10 to the power minus 31. तो दिस कम्स क्वाइट हाई वैल्यू, minus 19 है ये, इसको 16 कर लो, 1 point नहीं, 1 point something into 10 to the power कितना आएगा, 9. ओके, इट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, इसमें से वैल्यू नोट कर लो, डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑल दिस. यूनिट विल बी व्हाट, इसका यूनिट क्या आएगा, फिर यूनिट बता सकते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो का?
चार्ज का यूनिट कूलम, मास का केजी, कूलम पर केजी है। वैल्यू जस्ट यू कैन नोट डाउन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो gyromagnetic ratio is given in your textbook. You are supposed to know. इसमें कोई डाउट है? बोलिए। Any doubt here? E charge and Me is the mass of electron. ऊपर हमने लिखे हुए था। Value you will note down from your text. Do you want I should write? Let me see if it is. I'm getting it. Just a minute. Nobody is going to ask you. You are supposed to calculate there itself by knowing the values. कितना है देखो यहाँ पे, can you see? (8.8) into 10 to the power 10. 8.8 into 10 to the power 10. Easy to remember. Okay. Now next one is it clear? बोलिए। Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So after noting this, related point है एक और इसी का ही टॉपिक का, Bohr's magneton. Let's see what is that. Bohr's magneton क्या होता है देखते हैं। अच्छा इसको हम देखो, this point can be used like this. नोट में लिख लेते हैं इसको, write in notes. If proton is having the charge E, then both will have the same. इसको मत लिखो, then both will have the same direction. तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा. Don't write this. Next point you can write. ये तो कॉमन सेंस का पॉइंट है। ये देखो ये वाला पॉइंट जो है ना, if uniformly charged body having Q and mass M, then ratio of dipole moment ml. L इसलिए लिया कि वो रिवॉल्विंग रोटेशन की वजह से, और सिंपली m लिख सकते, चलो L छोड़ दो, m लिखो। रेशियो ऑफ डायपोल मोमेंट का सिंबल m लिया हम लोगों ने, एंड एंगुलर मोमेंटम L विल बी E था, E को हमने Q में कन्वर्ट कर दिया, and mass of the body will remain Q by 2m. So this is very helpful in getting the dipole moment of charged body. Suppose if I ask you, एक डिस्क है, particularly those who are going for JEE मेंस एंड एडवांस, उसके लिए ऑफ कोर्स नीट में भी काम आ सकता है। तो देखो ये रिवॉल्व कर रही है चार्ज डिस्क, तो बोलेंगे डिस्क इज यूनिफॉर्मली चार्ज, फाइंड इट्स डायपोल मोमेंट। क्या करना पड़ता है, एलिमेंट्री रिंग लेके करंट निकालो, फिर उसको इंटीग्रेट करो 0 से लेकर R तक है। पहले करंट निकालना है, फिर फार्मूला लगाना है डायपोल मोमेंट का, INA वाला, N is 1, एंड उसको इंटीग्रेट करना है। बट इफ यू वांट टू गेट rid of integration, यूज दिस फार्मूला। यूनिफॉर्मली चार्ज होनी चाहिए बॉडी, तो मोमेंट डायपोल मोमेंट निकालना है, m निकालना है, L क्या होगा, डिस्क का L विल बी I ओमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यू आर सपोज्ड टू नो, और चार्ज टोटल मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी मास आएगा, डिस्क का कितना होगा, ½ mr² होता है।
अच्छा यहाँ पे मास मैंने इसलिए चेंज किया था, ये भी m है और ये भी m है, इसलिए ml लिखा था मैंने, समझा? इसलिए ml लिखा था कि you should not get confused with both m, this m and this m. Revolving dipole moment due to angular momentum, due to I think due to rotation, इसलिए सिंबल चेंज कर दिया। तो मास, ये वाला मास जो यहाँ पे जो आया आएगा हाफ mr² will get cancel, तो बाकी टर्म इधर शिफ्ट कर दो, you will get the dipole moment of revolving disk or revolving rod or revolving जो भी बॉडी है जिसके भी तुमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखे हैं। तो इट विल बी वेरी टाइम सेविंग, यू नो, वेरी वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग, यू कैन गेट rid of इंटीग्रेशन, है ना। अदरवाइज एक्सटेंडेड बॉडी का, एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी का अपने कोर्स में नहीं है, बिकॉज इंटीग्रेशंस आर रिक्वायर्ड। So you can make the use in competitive examination this formula. All right, but uniformly होना चाहिए। Did I write? हाँ, uniformly. Otherwise non uniform है तो इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। Now next related point of this topic is Bohr's magneton. क्या है Bohr's magneton? You see Bohr's मॉडल अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी से रिलेटेड है। Bohr's magneton is nothing but a dipole moment, इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट ही। कौन से इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। कौन से एटम का? हाइड्रोजन एटम का। कौन से ऑर्बिट का? फर्स्ट ऑर्बिट का। इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम के जो फर्स्ट ऑर्बिट, अभी जो हमने तुम्हें थोड़ा बहुत पॉइंट डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो डायपोल मोमेंट होगा वही उसका, दैट इज कॉल्ड बोर्स मैग्नेटॉन। क्या था डायपोल मोमेंट? इनफैक्ट हाफ EVR। तो E की वैल्यू पुट कर दो, V की वैल्यू पुट कर दो, R की वैल्यू पुट कर दो, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। आई टोल्ड यू फर्स्ट ऑर्बिट में हमें, we know both the values, but still you don't know, then also you can manage. Let's do that without knowing the R and V। फर्स्ट ऑर्बिट का फिर भी कर सकते हैं। लेट अस सी, देखो कहाँ पे किया मैंने, नीचे किया, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा सिंपल कर दिया उसको मैंने, टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा लेंदी दिया। देखो C1 लाइन में ही है ये, जस्ट थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। देखो क्या लिखा है ऊपर, इट इज ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो क्या सीखा था अभी हमने? हाफ EVR सीखा था। तो मास से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड, क्या किया? मास से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड कर दिया। तो ऊपर जो है E को सेपरेट कर दिया, E को जस्ट E को सेपरेट कर दिया हमने, एंड MVR को सेपरेट कर लिया। MVR इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम, MVR इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम। हाँ देखो थोड़ा सा डार्क ज्यादा हो रहा था, तो E हमने सेपरेट कर दिया MVR। MVR is angular momentum which is nothing but h/2 pi, NH/2 pi, Bohr's second postulate। We will learn it in the modern physics, हम अपने कोर्स में भी है ये Bohr's model and all, second book में। तो MVR is nothing but NH/2 pi, N will be 1, h/2 pi, है ना। बस सारे कांस्टेंट आ गए देखो इधर। दिस इज व्हाट इज द आंसर, this is what is the value of Bohr's magneton, which is E charge is known, H is the Planck constant, which is 6.6 into 10 to the power minus 34। ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड बुक में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यू पुट इट हियर, ME कर देते हैं ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ME। We put all the values, you are going to get this 9.27 into 10 to the power minus 24 ampere meter square।
हालांकि डायपोल मोमेंट का यूनिट चेंज नहीं होने वाला, एम्पियर मीटर स्क्वायर. गॉट इट? So this is Bohr's magneton, dipole moment of electron in the first orbit of hydrogen atom. Second orbit में कितना हो जाएगा बोलो? What will be the value in second orbit? तो n is equal to 2 put कर देंगे, n is equal to 2 put कर देंगे यहाँ पे. But that will not be called Bohr's magneton. Bohr's magneton means first orbit का electron का. That's all. Are you getting these points? Comfortable? बोलिए. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये सब तुमने, बोर्स मॉडल एंड ऑल. फिजिक्स में भी रिपीट होगा. बोर्स मैग्नेटॉन में सिंबल देख लेते हैं. म्यू बी है क्या? जस्ट लेट मी क्रॉस चेक. यहाँ पे म्यू बी है क्या? लेट्स सी सिंबल्स थोड़ा सा. मिनिमम है एक्चुअली. म्यू एल मिनिमम, मिनिमम पॉसिबल. This value is called Bohr's magneton. The mu L minimum. ठीक है. नो प्रॉब्लम सो फार. बोलिए, जल्दी से बोलते जाइए. Is there any problem if you have just unmute and ask? Otherwise, we'll move on to the next topic. Further topics are most important. All right, देखो फिर. Now we are going to see moving coil galvanometer. शॉर्ट में हम लोग इसको, ये इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक सारा. MCG बोल सकते हैं. MCG इज आल्सो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है ना, उसको शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं. तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर सुना है तुम लोगों ने? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? पढ़ा है हम लोगों ने? ओनली नेम वाज देयर इन द. कहाँ पे आया था ये? इट वाज इन पोटेंशियोमीटर एंड इन मीटर बिच. ठीक है. तो अपने कोर्स में कौन सा डीसी वाला है? डीसी करंट के लिए, बैटरी करंट के लिए. एसी का अपने कोर्स में नहीं है. ठीक है. तो इट इज, पर्पज क्या है बताइए? जस्ट टेल मी व्हाट डिड इट डू देयर इन द व्हीटस्टोन ब्रिज. क्या काम किया था इसने वहां पर? टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल करंट. ठीक है. तो यू कैन राइट द पर्पज ऑफ दिस डिवाइस टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द स्मॉल करंट इन द सर्किट. और ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है. तो ये हम देखते हैं क्या है. नहीं, ऑफ कोर्स मीडियम रेजिस्टेंस होगा इसका. लो करंट मेजरमेंट है, स्मॉल करंट. ठीक है. It indicates the presence of the small current in the circuit. And on what principle it works? Working principle क्या है इसका बोलो? अभी जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में टॉर्क पढ़ा था ना, तो उसी वही प्रिंसिपल है इसका. करंट कैरिंग कॉइल in external field will experience the torque. Current carrying coil in external field will experience the torque. So that's what is the principle, working principle. Current carrying coil को हम external field में रखेंगे, external uniform field में. So it will experience the torque. यहाँ पे मैं external word use कर लूँ क्या? In external field लिख देता हूँ.
ठीक है, व्हाई डिड वी चेंज इट? यूनिफॉर्म फील्ड क्यों हटा दिया मैंने? बिकॉज इट कैन एक्सपीरियंस इन नॉन टॉर्क इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड आल्सो, बट उसमें क्या होगा, फोर्स भी लगेगा, it will not be stable there, it will just move also and turn also, but it will experience the torque. So therefore I have generalized it. Torque दोनों फील्ड में लगेगा, but we are using the uniform field so that it should not rotate, it should not translate, इधर उधर नहीं जाना चाहिए, अपनी जगह टर्न करना चाहिए। क्लियर? देखो आगे इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, थियरी पार्ट देखते हैं। तो लेट्स सी इन योर लैब केवल इतना ही दिखता है तुम्हें, ऐसे ये सब हिडन रहेगा, अंदर का पार्ट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्केल दिखेगा यहाँ पर, ये पॉइंटर होगा, इफ यू कनेक्टेड इनटू द सर्किट तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा। एक्चुअल में कैसा होता है, वो जीरो जीरो सेंटर जीरो का होता है। करंट अगर तुमने करंट क्या इस तरफ जा सकता है या इधर इधर जा सकता है, करंट की पोलैरिटी चेंज करेंगे, सिंस इट इज डीसी दूसरी तरफ चला जाएगा। तो सेंटर जीरो टाइप, सेंटर जीरो का जनरली यूज करते हैं, बट दैट पॉइंट इज नॉट मेंशन्ड हियर, नो प्रॉब्लम। ये पॉइंटर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेट्स है इनफैक्ट। टॉप व्यू है, इट इज यू आर सीइंग फ्रॉम द टॉप, यू नो, यहाँ पे यू कैन राइट टॉप व्यू, ऊपर से देख रहे हैं कट क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस। ये तुम्हें ऊपर से ऐसे दिखेंगे तुम्हें, ये कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट्स हैं। concave shaped magnets will produce a radial magnetic field in which magnetic fields are along the radius। ऐसे है देखो, along the, ये पूरा सर्कल बन रहा है देखो, तो ऐसे रेडियल फील्ड्स ऐसे होंगी। बीच में ये कोर है, तो वहां पर वी आर नॉट इंडिकेटिंग, ये वाली रेडियल फील्ड ऐसे आ जाएगी, है ना। दे आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर, बीच में यहाँ पर आयरन कोर है, तो फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही है, बट दे आर अलोंग द रेडियस ऐसे। वी कॉल इट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखा है यहाँ पर? इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल विच हैव मेनी टर्न्स। देखो ये ऐसे, फिर नीचे जाएंगे, फिर दूसरी तरफ से घूम के आएंगे, फिर इधर से देखो यहाँ से, इसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया। ये सिलेंड्रिकल कोर है, ये टॉप जो है ना, ये टॉप यहाँ से दिख रही है, ये नीचे होगा, ऐसे कॉइल जाएगा इधर से, फिर ऐसे घूम के आएगा, फिर ऐसे जाएगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, बहुत सारे टर्न्स होंगे, बट इट विल रिमेन रेक्टेंगुलर कॉइल। जो कि हमने प्रीवियस उसमें टॉर्क वाला देखा था, ये एल था और ये बी था। तो ये कॉइल है, ये वाला, दिस इज द कॉइल, और दिस वन हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, और ये सॉफ्ट आयरन कोर है, दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर। ये वाली सॉफ्ट आयरन कोर का अपना एडवांटेज रहता है, इट इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल, इट इज गुड, इट हैज गॉट वेरी हाई वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक कांस्टेंट। ठीक है, और ये रिटर्न स्प्रिंग रहेगा ऐसे, जब ये टर्न हो जाता है यहाँ पे जो स्प्रिंग रहेगा वो वाइंड हो जाएगा, जब करंट हम विड्रॉ कर लेंगे तो ये अनवाइंड करके उसको इनिशियल पॉइंट पे ले आएगा। सपोज जीरो यहाँ पे है तो यहाँ ले आएगा, जीरो अगर यहाँ पे है तो यहाँ ले आएगा। ठीक है, रिटर्न स्प्रिंग इज ऑलवेज टू ब्रिंग बैक द कॉइल टू इट्स इनिशियल पॉइंट व्हेन करंट इज विड्रॉन, पॉइंटर को वापस ले आएंगे। जैसे ब्रेक लगाते हैं हम लोग, उसमें भी रिटर्न स्प्रिंग रहता है। व्हेन यू रिमूव द hand or leg from the brake pedal, foot from the brake pedal, it comes back to its initial position। वैसे इसमें भी करंट रिमूव कर देंगे, if current is not there or current is withdrawn, it will bring back the coil to its initial position। रिटर्न स्प्रिंग रहते हैं अपने, है ना। पिवट पॉइंट है, यहाँ से टर्न कर सकता है वो, यहाँ पे पिवटेड रहेगा, ऐसा टर्न करेगा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। एंड ये यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाले यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्राप्त होती है हमें? ये ऐसे कॉनकेव शेप्ड मैग्नेट से। एडवांटेज क्या है इसका?
रेडियल फील्ड का लीनियर डिफ्लेक्शन मिलता है, हमें लीनियर रिलेशन मिलता है डिफ्लेक्शन एंड करंट के बीच में। सपोज 1 एम्पियर करंट के लिए 1 डिग्री मिला, तो 2 एम्पियर करंट के लिए 2 डिग्री डिफ्लेक्शन मिलेगा, तो लीनियर रिलेशन रहेगा। तो उसके लिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं हम लोग। तो वील राइट द शॉर्ट नोट ऑन द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड। पहले थियरी देख लेते, कंस्ट्रक्शन में बाकी पॉइंट लिख देना, ये है ना। ये कंस्ट्रक्शन में जो तुम्हें दिख रहा है, जो मैंने एक्सप्लेन किया, रिटर्न स्प्रिंग और स्प्रिंग एसपी स्टैंड, देखो यहाँ पे एसपी लिखा हुआ है, एसपी स्टैंड फॉर द स्प्रिंग, ठीक है। एंड अदर पॉइंट्स यू जस्ट नोट डाउन हियर। कंस्ट्रक्शन थोड़ा ब्रीफली लिखना पड़ता है, इफ यू मेक द डायग्राम प्रॉपर्ली इट्स ओवर, इट्स डन, ठीक है। नाउ थियरी पार्ट देखते हैं। थियरी पार्ट जो है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस टॉपिक। टॉर्क जो हमने डिराइव किया था, वो फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। क्या था टॉर्क का फार्मूले में? देखो बीना आता है, BINA sin थीटा, और डायपोल मोमेंट के फार्मूले में मीना आया था कि MINA था। यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, टॉर्क में केवल यहाँ से पढ़ना पड़ेगा बीना, है ना। तो टॉर्क का फार्मूला देख लेते हैं एक बार पीछे वापस जाके। कैन वी सी इट, व्हाट वाज दैट? MB sin theta. हाँ, m की वैल्यू पुट MB करके sin पढ़ theta. सकते हैं, m इज इक्वल टू INA, है ना। तो फुल फार्मूला वी आर यूजिंग, m को हटा के उसकी वैल्यू के साथ यूज करने जा रहे हैं अभी हम लोग। MB sin थीटा इज वेरी राइट। यहाँ पे देखो, इसको हम बीना लिख सकते हैं कि नहीं, इसके सीक्वेंस चेंज करके BINA, तो याद रखना आसान हो जाएगा कौन कौन से टर्म है उसमें। वो मीना था, ये बीना हो गया ना, ठीक है। और साइन थीटा बाद में फिर हमने ये लिखा m क्रॉस b और MB sin थीटा, दिस वी आर यूजिंग इट। और साइन थीटा जो है रेडियल फील्ड में 1 रहेगा, तो दैट इज टू मेक द लीनियर रिलेशन बिटवीन करंट एंड डिफ्लेक्शन। इसलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ली जाती है, उसको लास्ट में हम उसके पर्पज लिखेंगे, नॉट नाउ। देखो, when the current I flows in the coil, then torque will be BINA sin theta. If you don't remember, then you can go back to m into b sin theta, m की वैल्यू INA, ये लिखना है। तो sin theta will be 1 in radial magnetic field. How it will be 1 we'll see later, ठीक है। तो ये टॉर्क मिल गया, उसको टर्न करेगा ये, और ये स्प्रिंग वाइंड हो जाएगी, इसको अपोजिट फोर्स लगाएगी, इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो स्प्रिंग का अपोजिट फोर्स देखते हैं, उसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया, इट इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट द पॉइंटर। नाउ लेट्स सी द रिस्टोरिंग टॉर्क, वापस लाने का जो टेंडेंसी है, यहाँ पे देखो, यू सी नाउ द स्प्रिंग प्रोवाइड्स द काउंटर टॉर्क दैट कैन बी कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू K into phi। थीटा नहीं लिख रहे यहाँ पे, बिकॉज थीटा यहाँ पे साइन थीटा 1 हो चुका है, तो इसलिए हम थीटा सिंबल यूज नहीं कर रहे। यहाँ पे एंगल का सिंबल फाई लिया हम लोगों ने। तो सपोज 5 डिग्री टर्न हो गया वो, वेयर देखो देखो यहाँ पर, वेयर K विल बी द टॉर्शनल कांस्टेंट, इसको टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। इसकी डेफिनेशन पूछेंगे तो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, K की वैल्यू यूनिट ट्विस्ट के लिए K है, तो फाई ट्विस्ट के लिए फाई विल बी द एंगल, ट्विस्ट मींस एंगल, तो फाई ट्विस्ट के लिए फाई हो जाएगा। 1 डिग्री के लिए इतना, तो 5 डिग्री के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियन में भी लिख सकते हैं, 1 रेडियन के लिए इतना, 5 रेडियन के लिए। तो फाई इज द डिफ्लेक्शन इंडिकेटेड ऑन द स्केल ऑफ द पॉइंटर, इंडिकेटेड ऑन द स्केल बाय द पॉइंटर। कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, कितने डिग्री हो रहा है, डिग्री में नहीं लिखा रहता वहां पे, उसको बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे। दैट ऑफ कोर्स इसमें डिग्री लिख सकते हैं हम, कितने डिग्री। तो फाई कितना कितना टर्न हो रहा है, फाई विल बी द डिफ्लेक्शन इंडिकेटेड ऑन द स्केल बाय द पॉइंटर, है ना। के किसके लिए, यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए, है ना। रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, ट्विस्ट मींस एंगल, है ना, पर यूनिट एंगल कर लो चाहे तो फाई टर्न हो रहा है, तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क,
इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू दिस, बस दैट्स व्हाट इज द एंड पॉइंट। देखो एट इक्विलिब्रियम बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल, इक्वेट कर दो दोनों को, k phi इज इक्वल टू b ना, और k को नीचे भेज देंगे, तो phi इज इक्वल टू ban, बैंक हो गया नीचे, k नीचे है देखो, can you see? into I, ये सब कांस्टेंट है, b आल्सो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया ऑफ द लूप कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट, और ये स्प्रिंग का k कांस्टेंट, रिस्टोरिंग टॉर्शनल कांस्टेंट कांस्टेंट है ना, ऑलरेडी नाम ही उसका कांस्टेंट है। तो all four put together are constant. So deflection is directly proportional to current. That's what is the theory. Theory part में क्या prove करना है? Deflection of the pointer is directly proportional to the current flowing in the galvanometer. This is the theory part. So sometimes it can be asked. Prove that deflection directly proportional to, deflection means कितना angle उसका deflect हुआ. Could you get this? ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया, ये रिस्टोरिंग टॉर्क, ये काउंटर टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। मोर करंट, मोर डिफ्लेक्शन, ज्यादा करंट है तो पॉइंटर यहाँ तक आ जाएगा, बिल्कुल एंड तक आ जाएगा। ठीक है, तो थियरी पॉइंट इज ओके। Are you there? You are present in the class. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा बता दो, देन दिस टॉपिक इज ओवर। बस इसमें मंडे को विल फिनिश द रिमेनिंग पार्ट। इसको कैसे आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को, that is the part remaining. Both are important. This can also be asked. यहाँ पर समटाइम्स आई थिंक बुक में थीटा ही लिखा देखना पड़ेगा, समटाइम्स बुक्स राइट थीटा, थीटा मत लिखो बिकॉज थीटा इज यहाँ पे डिफरेंट है, थीटा वी हैव यूज्ड फॉर दैट। यहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए, टॉर्क में थीटा क्या था, एंगल बिटवीन एम एंड डायपोल मोमेंट एंड फील्ड, दैट पर्टिकुलर थीटा हैज बीन डिफरेंट। और ये थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन है, पॉइंटर कितना कितना शिफ्ट हो रहा है, और ये वाला सॉरी ये फाई जो है डिफ्लेक्शन है पॉइंटर का। और दिस थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट। यहाँ से अगर थीटा 1 है या थीटा 90 होगा ना, तभी तो 1 आएगा। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट नाउ, दिस इज ओवर। ये पॉइंट का थोड़ा डिस्कस करते, तुम्हें अभी भी रेडियल फील्ड के बारे में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, क्या है ये रेडियल फील्ड। इफ आई टेल यू राइट शॉर्ट नोट ऑन द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको why it is used and how it is used, दो पॉइंट लिखने पड़ेंगे तुमको। why it is used, let's see, this is done, just 2 minutes, I want 2 more minutes to complete that radial magnetic field.
Sir, you are not audible.